Hi students, let's see this question that was asked in KVPY 2020 SX Part 1 Physics paper. So this was a good question in my opinion. Many students could not do this question in the exam. But yes, it was slightly manipulative. But if you could have just gone on with doing whatever is given in the question, then finally eventually you would have been able to do this question. So let's see what's happening over here. A gas is undergoing a cyclic process wherein there are three different processes. One is isobaric, one is adiabatic, and this one is isothermal, right? The efficiency of the cycle has been given as 50%, and it is also given that the ratio of the highest temperature to the lowest temperature is x, right? So we have to find that in which of the which relation x follows, which of the following relation x follows. This is what we have to find in the given question, right? So now, as I told you, if we just do this question procedurally, that means whatever has been given, if we start doing uh, those things according to procedure and move logically ahead, then eventually we will be able to solve this question, right? Now let's start from this point. Let's call this point A, call this point B, and call this point C. Okay, let's say here, so you can see the it's this whole thing is like process AB is isobaric in nature. So if you say that temperature here is, let's say, T naught, and let's say volume here is V naught. So I'm saying at point A, temperature is T naught and volume is V naught. Okay, so you can see that at this point temperature will also be T naught, and there will be some volume at this point which we are going to write very shortly. तो यहाँ का टेम्परेचर T नॉट रहेगा because this is isothermal process, और यहाँ का volume we will find shortly. Now you can see at point B temperature would have increased, right? Why? Because on an isobaric process, if you increase the volume, so pressure is constant, volume increases, that simply means that temperature would have increased. So can we write the temperature value here as xt naught? Can we say that here temperature would have been xt naught? Why? Because the highest temperature to lowest temperature is x. So if we say temperature here is T naught, then here also it is T naught, and we already know that at point B temperature will be more than A. So here the temperature will be xt naught, and hence we can say volume will also be xv naught, because if pressure is constant, so we know that temperature of volume will remain constant. So we can say that if temperature becomes x times, so volume would have become x times. So if the volume here is v naught, so here it would have become x v naught. If at point A, if the volume is v naught, so at point B, volume would have become x times, right? Now if you look at point B and C, पॉइंट बी एंड सी को अगर हम देखें, सो वी कैन सी दैट दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? सो एडियाबैटिक प्रोसेस पे वी नो दैट टीवी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है? टीवी की पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है? फॉर एडियाबैटिक. ओके, नाउ if you are wondering कि how did we get this equation, so basically pv की पावर गामा कांस्टेंट है, pv की पावर गामा कांस्टेंट है, so you just write p as nRT by v, ठीक है? nRT by v लिख दोगे तो you can see कि यहाँ पे t आ जाएगा और v की पावर गामा माइनस वन आ जाएगा. nr कांस्टेंट में चला जाएगा, n into r will go in a constant, so we can say that tv की पावर गामा माइनस वन is constant for a adiabatic process. Gamma is the ratio of molar specific heats at constant pressure and constant volume. Adiabatic exponent भी बोल सकते हैं गामा को, right? So now if we apply this thing for B and C, तो B पे जो टेम्परेचर है that is x t naught, ठीक है? and B पे वॉल्यूम is x v naught की पावर gamma minus 1, that should be equals to temperature at C is T naught into volume at C we can say is Vc की power gamma minus 1, right? T naught and T naught will get cancelled. So if you take the like how what is the value of Vc from here, so you can see यहाँ पे क्या आ रहा है, x की पावर गामा, क्योंकि गामा माइनस वन एंड प्लस वन तो हो जाएगा x की पावर गामा, ठीक है? एंड दिस विल बी v नॉट की पावर गामा माइनस वन. So if you take the मतलब 1 by
गामा माइनस वन का रूट ले लें, मतलब कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि गामा माइनस वन की पावर से कम कर देते हैं, सो दिस विल बिकम गामा माइनस वन एंड दिस विल बिकम वी नॉट। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, दोनों तरफ वन अपॉन गामा माइनस वन पावर ले लिया। ठीक है, वन अपॉन गामा माइनस वन पावर ले लिया। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा है a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y, तो कैन वी राइट दिस एज a की पावर x बाई z इज इक्वल्स टू b की पावर y बाई z। ठीक है, तो सेम थिंग आई हैव डन। ये vc की पावर गामा माइनस वन था ना, तो मैंने वन अपॉन गामा माइनस वन पावर ले लिया, तो ये इस साइड वन आ जाएगा एंड दिस x की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन बन जाएगा और v नॉट की पावर गामा माइनस वन वन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वी गेट द वैल्यू ऑफ vc इन टर्म्स ऑफ v नॉट, राइट नाउ। सो हमें वॉल्यूम यहाँ का मालूम पड़ गया, विच इज वी नॉट इंटू एक्स की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ठीक है, नाउ इफ यू वी विल यूज दिस डेटा, efficiency is 50%. So efficiency of a cyclic process is simply, we can say that work done upon heat input, कितनी heat absorb हुई है। Okay, so let's go to a new slide. So basically we can say that कि जो efficiency की value है, that is nothing but work done upon Q in। ठीक है, Q in, तो वर्क, अब इसको we can say that 1 upon Q out। why am I putting in modulus? because we realize कि जो negative, जब जो heat reject होती है that is negative, so we have to take the magnitude of that, hence I am putting this in modulus। ठीक है, so we can say this, now this is given as 0.5 in the given question, so this means that Q out upon Q in की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, अब Q, दैट मींस अब देखो Q आउट बाई Q इन की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, नाउ इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट वुड हैव बीन एब्जॉर्ब्ड ऑब्वियसली, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस में वी कैन से कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। आइसोबैरिक एक्सपेंशन में वी नो दैट एनसीपी डेल्टा टी, तो अगर आइसोबेरिकली अपन किसी चीज को एक्सपैंड कर रहे हैं देन दैट इज फॉर श्योर कि उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। ठीक है, एडियाबैटिकली कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट हुई होगी, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्यू आउट हुआ है और इसमें क्यू इन हुआ है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, तो ये जो ए बी वाला प्रोसेस है, इसको अपन इस क्यू इन को कैसे लिख सकते हैं? क्यू इन को लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी पी डेल्टा टी। सीपी को क्या लिख सकते हैं? गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, सीपी क्या होता है? गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीपी। ठीक है, इफ यू नो सीवी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, सीवी इज नथिंग बट आर अपॉन गामा माइनस वन, तो सीपी क्या होता है? गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, बिकॉज सीपी बाई सीवी गामा होता है। आई होप यू नो दिस। तो एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? एक्स टी नॉट माइनस टी नॉट। ठीक है, एक्स टी नॉट माइनस टी नॉट मतलब ये हो गया एक्स माइनस वन इंटू टी नॉट। ठीक है, क्यू आउट। क्यू आउट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट की बात हो रही है, आइसोथर्मल में हीट का मैग्नीट्यूड। नाउ आइसोथर्मल में देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, so can we say that q out is nothing but magnitude of the work done, right? Magnitude of the work done. So for an isothermal process we can say that this is equals to this, we realize this है ना। और इसको अपन लिख सकते हैं एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ठीक है, सिंस दिस इज एन एक्सपैंड कंप्रेशन, तो वी नॉट मतलब फाइनल मतलब वॉल्यूम एट ए विल बी लेस देन वॉल्यूम एट सी, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम एट ए विल बी लेस देन वॉल्यूम एट सी, है ना। तो ये वाला वॉल्यूम बड़ा होगा, वीसी विल बी मोर देन वी ए, है ना। तो अगर जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा एन आर टी। टी का मतलब टेम्परेचर ऑन दिस प्रोसेस इज टी नॉट। ठीक है, तो वो टी नॉट आ जाएगा। एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? वी नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है? वी नॉट अपॉन ये एक्स गामा गामा माइनस वन। ठीक है, तो वी नॉट, तो वो जो वी नॉट है वो तो कैंसिल हो जाएगा और वी विल बी लेफ्ट विद ये एक्स अपॉन गामा गामा माइनस वन। ठीक है, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब एन आर टी नॉट कैंसिल हो गया, एन आर टी नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सॉरी गामा,
दिस इज गामा, दिस इज आर, तो एन आर टी नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। दिस ऑफ कोर्स इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब ये लेस देन 1 है, तो जब मॉडुलस हटेगा सो ऑफ कोर्स इट विल बिकम ऑपोजिट, है ना। तो वी कैन से दैट मॉडुलस जब अपन हटाएंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ x, और मतलब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, और ये गामा अपॉन गामा माइनस 1 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इस वाली टर्म को अपन इधर ले जाते हैं, तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 x माइनस 1 इंटू 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब बाई 2, ये गामा माइनस 1 का भी फैक्टर कैंसिल हो गया है। बस अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, हमारे को ये तुम ई की पावर इधर ले जाओ, और ये 2 इधर ले जाके, मतलब ये वाला 2 इधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है, और ये ई इधर ले जाओ, तो ये ई की पावर एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 2 इधर ले जाके एक्स पे चढ़ा दिया, और देन और ये जो ई है इधर ले आया राइट साइड पे, तो ई की पावर एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो इफ यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी मैचेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बट अगर अपन इसको प्रोसीजर से करते जाएंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जाम में हो सकता है कि टाइम कम पड़ जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो एग्जाम में यू माइट और यू मे लीव दिस क्वेश्चन, बट at home you should definitely be able to do this question. I hope you would have enjoyed this solution. That's all. Thank you.